Good morning, Savita. How are you? Good morning, Vinita, Jasbir, Swati. A very good morning to one and all. Good morning. Good morning, Minu. Good morning to each one of you. I hope you're enjoying the day. Yes? Good morning, Sonu. I'm good. How about you, Swati? I'm doing super good and I'm very happy to see your homework, to see your mystery books. And I got to see a lot of mystery pages and they were very beautiful, very, very beautiful. So, a lot of hearts and virtual chocolates from my side to each one of you. Yes, a lot of hearts. You got your hearts? So, here I'm giving the hearts. Hearts, thumbs up. For all the lovely students. And these hearts and these smileys are a way of giving virtual chocolates to each one of you. Yes? So, are you excited for the day? Do you know what are we going to do today? All right. So before we begin, I would want to ask all of you about your homework. Have you done your homework? Have you done your homework? Waiting for your reply. Have you done your homework, guys? मिस्ट्री पेजेस मैंने तो बहुत सुंदर सुंदर देखे जो बहुत सारे बच्चों ने भेजे बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि आप लोगों ने मिस्ट्री पेजेस बनाए सविता यू हैव डन ऑल राइट ओके जो स्टूडेंट्स ने मिस्ट्री पेजेस मिस्ट्री बुक्स बनाई हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट आप सभी को फोटो खींच के उसी नंबर पे भेजना है जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी रावल डिजिटल मंच के एक नंबर पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी सो यू हैव टू सेंड ऑल योर pictures all your homework on that particular phone number on the WhatsApp okay so make sure you do that okay yes you have done Payal that's so great so I would want to see all of your mystery pages and मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप mystery pages बना के दोगे तो Jasbir you have submitted okay that's so great that's so good so I have received some 3-4 mystery pages from some students so which are very beautiful बहुत सुंदर बनाए हैं और बहुत अच्छे से words लिखे हैं that is really really good very good किस किस स्टूडेंट्स ने अभी नहीं बनाए मिस्ट्री पेजेस कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मिस्ट्री पेजेस अभी बनाने हैं you have submitted your name Payal you have submitted by the name of Payal only I have also submitted all right Minu very good Parinita yes
I think I have received yours. Yes, I have also received your homework and I can see आप सभी ने बहुत ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से सबने मुझे मिस्ट्री पेजेस भेजे हैं, बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेंडिंग भी हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप सारे के सारे जैसे ही आपको लगता है आप उसको फिनिश कर पाओगे, बिकॉज नाउ वी हैव अ वीकेंड, वी हैव गॉट सैटरडे एंड संडे, सो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा टू कंप्लीट योर मिस्ट्री पेजेस. And you are all requested to submit it on the same WhatsApp number जहां से आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी. जो WhatsApp नंबर पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी उसी नंबर पे आपने वो सारे के सारे मिस्ट्री पेजेस भेजने हैं आपने, राइट? बट मैंने जो रिसीव करे वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे हैं. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड दे वर वेरी गुड. I have, okay. So you have submitted by the name of Ria. All right, Meenu, I think I've received yours. All right, Jasbir. Okay, Aparna, you can make it and you can submit me later. It's not an issue, but make sure आप अपना सारा homework, सारा creative masterpieces सब submit करेंगे. Mystery pages are very important. All right, Poonam, you can keep on decorating it. Once you are done, make sure you submit it. All right. As you all know that we are going to pick up the best and we are going to put it on Ravel Digital Munch. Yes. आप सभी के सारे creatives को Ravel Digital Munch पे present किया जाएगा. So you are all requested कि आप उसे time to time share करें. Yes, Sonu, you can also send your drawing. Of course, you can send your drawing. What I have to do in it. Swati, you were supposed to make a mystery page. Remember, हमने कल एक new word याद किया था. Excited के 5 new words याद किए थे. Excited के 5 synonyms याद किए थे, similar words. Yes. And in those 5 words, आपको क्या बनाना था? एक mystery page के ऊपर आपने बहुत सुंदर सा एक mystery book बनाना था और उसको हम लास्ट में क्या बना देंगे? बहुत सारे पेजेस को जोड़ के हम क्या बनाएंगे? लास्ट में एक मिस्ट्री बुक बनाएंगे जो हम अपने स्कूल लेके जाएंगे और मैम को दिखाएंगे. रिमेंबर? ऑलराइट. सो I am so thrilled. Yes, Vinita, very good. So Vinita has started using the new word that we have done yesterday. I would want a lot of students, more students to use the same word so that जो भी हम new word याद करें वो सबके use में आने लगे, practice होने लगे उसकी. Yes? All right, I can see that some students have submitted. Some students have to submit, so it's all right. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सबमिट कर लेना जैसे ही आपको टाइम लगता है. बट मेक श्योर सैटरडे संडे है तो हम सैटरडे संडे को अच्छे से यूज करके वी आर गोइंग टू सबमिट आवर मिस्ट्री पेजेस. यस. All right, Shubhi, I'll just have a look at it. And of course, जिन्होंने submit किया, I already told you that you have given us beautiful, beautiful mystery pages. And I was very excited to see them. And the moment I got to see, they were very beautiful. बहुत बहुत beautiful थे वो. All right. So I think a lot of you have joined us. And so all of you are very electrified. I can see that you people are learning new words, which is so good to see. All right, so today's mystery homework is very interesting. It's going to be very interesting. You are all going to record a video, but अभी मैं बाद में बताऊंगी कि आपने video record करके क्या करना है. All right, so I'm going to tell you the mystery homework for today. So today the homework is going to be very, very mysterious again, but you are going to love it. I promise. So the name of the girl was not Julie, it was Jerry. All right. So how many of you have done the exercise that was given on, that was presented on Ravel Digital Munch? हम लोगों ने कल एक rule किया था subject verb agreement का. Remember? We have done a rule for subject verb agreement. Yes. So how many of you have solved the activity and the exercise that was given to you? Did you get a chance to do that homework as well? Yes? All right. That's super cool. Okay. So now I am going to share something very interesting with you today. Any guesses? Do you have any guesses? What are you going to do today?
Do you have anything to tell me, as in what are we planning to do today? What is so exciting? Anyone? Can you see my screen? All right. I hope the screen is visible. Is the screen visible to everyone? Okay. Yes. So now I think the screen is visible to each one of you. And the most exciting thing that we are going to do is learn the art of storytelling. How many of you love listening to stories? Do you love listening to stories? So from past 2 days, I have been telling you a lot of stories about Jerry. Then the first day we talked about Tom's story. So today you are going to make a story. Today you people are going to make the story. And what is the topic for the day? The topic for the day is learn the art of storytelling. Are we excited? Are we excited to do this? Yes? All right. So मुझे आप लोग बताइए कि हम लोग स्टोरी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? Where do we use stories? कहाँ कहाँ हम लोग स्टोरी का यूज करते हैं? Do you use stories when you talk to your mama? सिंड्रेला एक स्टोरी है. देन बहुत सारी स्टोरीज वो पंचतंत्र वाली बुक में आती है, राइट? देयर इज अ बुक कॉल्ड पंचतंत्र हिंदी में, कॉमिक बुक्स. उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं. बट जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम कोई मैसेज बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो क्या हम स्टोरी का यूज करते हैं? यस, डू वी यूज? डू वी यूज? You also love to write stories. That's so good. But today we will not learn how to write a story, but we are going to learn how we can tell a story. How we can tell a story. Very good. In movies. Very right, Aparna. और कहाँ कहाँ हम रोज, कहाँ कहाँ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे हमें रोज स्टोरी सुनने को मिलती हैं? Any idea? To motivate. Very good. For a mind, fresh ingredients. Very good. Panchatantra. Very good. What else? और कहाँ कहाँ हम स्टोरीज का यूज करते हैं? To express our feelings. Very right. Very good. We use story in speech also. Very nice. Excellent. Outstanding. All right. So where all you think हम लोग day to day life में हम कहाँ कहाँ stories सुनते हैं? अकबर की बुक में. All right. Okay. In the history, providing knowledge. All right. SST में जब मैम पढ़ाती हैं तो बहुत अच्छे से स्टोरी समझा के बताती है ना, टू कन्वे अ मैसेज. वेरी गुड. बुक्स में देखते हो आप. तो जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि हम लोग स्टोरीज का यूज करते हैं और स्टोरीज का यूज करने से हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, विच वॉज वेरी ट्रू, rather which is very true. बहुत अच्छा point था वो. We give excuses, so we also say the story, yes, and then your ma'am says, please don't tell me all these stories, don't cook up stories. Yes, the phrase is don't cook up stories. कौन सा phrase है वो phrase बोलती है ना मैम, don't cook up stories in front of me. I know you have not done your homework. Yes, so while sleeping you listen to stories. From teachers you listen stories. Very good. In news, in excuses. स्टोरीज बनाते वक्त जब हम स्टोरी के थ्रू कोई बात बताते हैं तो आपको क्या लगता है कैसी होती होगी वो बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट 2 डेज से क्या कर रहे हैं? हम लास्ट 2 डेज से, मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी नैरेट करती हूँ. यस, मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले एक स्टोरी नैरेट करती हूँ और आप स्टोरी के थ्रू कितना इंटरेस्टिंगली मेरी बात को सुनते हो. यस, यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली.
You listen to me very carefully, all of you. जब मैं आपको स्टोरी के थ्रू 2 दिन से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, तो आई वाज यूजिंग स्टोरी. पहले मैं स्टोरी नरेट करती थी और फिर मैं टॉपिक पे बात करती थी. क्यों? बिकॉज स्टोरी पे जब हम बात करते हैं, जब हम स्टोरी को लेके बात करते हैं, तो बात बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है, राइट? बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है और हमें उस बात को बताने में, बोलने में अच्छा लगता है. Making excuses after doing mistakes, we tend to make stories. Very good, very nice. So when I was using story, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टोरी का यूज करूंगी तो आप लोगों को चीजें बेटर समझ आएंगी, राइट? सो आई क्रिएटेड अ शॉर्ट स्टोरी. यस. और मैंने उस स्टोरी को बनाने के लिए क्या किया, एक छोटा सा प्लॉट सेट कर लिया, छोटा सा सीन बना दिया. लाइक टॉम इज द स्टूडेंट ऑफ रावल इंटरनेशनल. रिमेंबर, जेरी वाज अ स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स. रिमेंबर? सो मैं डेली आपको कोई ना कोई एक स्टोरी दे रही थी. वी ऑल लव टू लिसन स्टोरीज. वाई? बिकॉज स्टोरीज के अंदर हमेशा क्या होता है, एक क्लाइमैक्स होता है. देयर समथिंग कॉल्ड अ चेंज. स्टोरीज हमेशा सिंपल सीधी सीधी नहीं चलती, अप एंड डाउन होता है, उसमें कुछ चेंज आता है, एक्साइटमेंट होती है. स्टोरीज ऑल्सो हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड इमोशंस. यस. Stories are very interesting and they attract the listener to listen us and understand our thoughts. Very good, Shubhi. Very nicely explained. Isn't it? So now today, are we all excited to learn the art of storytelling? Are we all excited to learn? Are we all electrified to learn the art of storytelling? Yes? Isn't it? Do we all want to learn storytelling? Do we all want to see how we can make good stories? Yes? So that tomorrow morning when I'll be live, I will see a lot of stories on Ravel Digital Manch. So you all are going to send me a short video. So आप लोगों ने आज की क्लास बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि कल मॉर्निंग में आप सभी के सभी हम लोगों को क्या सबमिट करोगे? यू आर गोइंग टू सबमिट वीडियोस. आप स्टोरी सुनाते हुए आप वीडियो बनाओगे. टेल योर मामा, टेल योर ब्रदर, सिस्टर टू रिकॉर्ड यू. आप स्टोरी सुनाते टाइम आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी एंड बेस्ट स्टोरी विल गेट दी प्राइज. Yes? So eager to learn? Are we all eager to learn? When our parents tell us something, they also tell us stories. Very good. So when you sit with your mama, when you sit with your papa, they tell you stories about what they used to do in their school time. Yes? In stories, there are a lot of excitement and emotions. Very well said, Aparna. Very well said. You're thrilled? All right. So with this, I'll break the thrilling part and we are going to hop on to the next slide. All right. What can you see in this picturesque slide? A very picturesque slide. Can you all see a picturesque slide? Yes? So here are some pictures. Here are some pictures. Are we excited? Are we excited to see some pictures? A slide full of pictures, a slide full of visuals. Yes? Pictures का other name हम visuals भी बोल सकते हैं. A new word for the day. Yes? The other word for the word called pictures, can we say visuals? All right. So what can you see on the screen right now? You can see some visuals. You can see some visuals, and these visuals are interpreting a story. These visuals, they are interpreting it's blur. All right, give me a moment. Now, so first we'll observe just the elephant story. The spelling of visual is V-I-S-U-A-L-S, visuals. All right. So here are some visuals.
here are some visuals, and visuals are depicting what? Visuals हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? Visuals are telling us about a story. Yes, like comic books. Okay. So now when I talk about storytelling, can you see these visuals? So first visual is about, it looks like a animal kingdom. Yes. first वाले visual से हमें क्या समझ आ रहा है? फर्स्ट वाली स्टोरी से, फर्स्ट वाले विजुअल को देखकर हमें कुछ इंटरप्रिटेशन करनी है. क्या करनी है? इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? कि उसको देख के हमें कुछ सोचना है, इंटरप्रेट करना है कि वो पिक्चर्स क्या बताना चाह रही हैं. वो पिक्चर्स क्या बता रही है, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं. कैन वी डू दैट स्टूडेंट्स? So let's talk about the first visual. The first visual is about animal kingdom. The first visual is about elephant story. Very good. Yesterday the news was also telling about the elephant story. So that was a very, very bad and a cruel act which happened. Yes, do you know about that story? You will all get a chance to speak the story. Don't worry about it. हम सबको chance मिलेगा story बताने के लिए. And story बताने के लिए हम सबको वीडियो भी बना के देनी होगी. रावल डिजिटल मंच पे हम उसको present करेंगे. Is it now better? So what are these? These are visuals. Students, आपको visual में से देख के कुछ पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ picture देखनी है. This is just a slide where I wanted to tell you कि stories जब भी हम बनाते हैं या story telling के बारे में बात करते हैं तो visuals, pictures बहुत important role play करती हैं. That's it. अभी आपको कोई story नहीं बनानी है pictures को देख के. Alright. So the first picture was of animal. Yes, animal kingdom. Let's look up to the second picture. The second picture is about, what can you see in the second picture, girls? Girls, can you see something in the second picture very exciting? Something very exciting? Princess, Cinderella. There's also a king here. तो हम लोग बेसिकली सोचो कि किसी पिक्चर को देख के भी हम कितनी सारी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, कितना सारा हम इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, कितने सारी आइडियाज हमें मिल जाते हैं, राइट? तो जो पिक्चर्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी अपने आप में स्टोरीज बताती हैं, वो भी अपने आप में कोई स्टोरी बताती है, कोई बात बताती है. अ किंग एंड अ प्रिंसेस एंड अ प्रिंस. वेरी नाइस. लुक, so many of you are getting the idea. You all are trying to interpret the visuals. You all are trying to interpret the visuals, and these visuals are called pictures, and these visuals are called pictures. Yes. Elephant is meeting in morning and says good morning to all. Very good. So look, you are so creative. Now अभी जब मैंने आपको एक picture दिखाई, when you saw this, what do you mean by this? Okay, so
अभी जब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस दी, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस दी, और ये इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादा क्या थी, they were very different and they were very creative. They were very creative and innovative. They were very creative and innovative. Yes, आप लोग बहुत क्रिएटिवली मुझे बता रहे थे कि ये स्टोरी इसके बारे में होगी. Yes, and this would be about an animal, a morning elephant going for a, going for maybe going to a pond to drink water, meeting animals around in the jungle. Yes, so you all were trying to be very creative and very innovative. Yes, so the new word for the day is creative and innovative. Creative and innovative. So the first word that we learned for the day was visual. It was visual. Visual means pictures. And what we are seeing on the screen right now, they are visuals. They are visuals. Yes, और ये visuals हमें कुछ बता रहे हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन. Yes, and when you were all telling me about the interpretations, you were very creative and innovative. So you were all very creative. आप बहुत creatively मुझे ideas बता रहे थे कि ये story इसके बारे में होगी, ये visual ये बता रहा है. Yes, so you all were telling me about creative and innovative ideas. You all were telling me about your creative and innovative ideas. All right? Yes? Okay. All right. So now there's a question. Yes? So we have learned 4 words till now, and these 4 words are visual, interpretation, creative, and innovative. Creative and innovative. Yes? Good so far? Good to go, people? Good to go? All right. So now when I talk about stories, where do you listen stories every day? आपने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि when we talk to our mama, when we give excuse, when we go to movies, when we maybe talk to our friends. So आप मुझे बताओ कि डे टू डे लाइफ में हम कोई बात बताने के लिए स्टोरीज का इस्तेमाल कब कब करते हैं? Where do you listen stories every day? Or where do you use stories every day to tell what you want? आप अपनी बात को बताने के लिए स्टोरीज का यूज कितनी बार करते हो डेली लाइफ में? Yes? Can you tell me some examples? Can you tell me some examples, students? In movies, very good. Movies में आपको बहुत सारी स्टोरीज दिखती हैं. Yes? Okay. And how about news? To tell what happened in our class, very good. When we explain anything, we use stories, very good. Ma'am, in daily life, yes, Shalendra, daily life में हम कहाँ stories का use करते हैं? In schools, by teachers, in movies, while studying books, specifically history and English, very nice. When our parents tell us something that we should not do, very good. How about news? The hot topic in the news these days is about cartoons. Very right, Swati. इन दिनों न्यूज के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी चल रही है, एंड दैट स्टोरी इज ऑल अबाउट एनीवन? What is happening in the world these days? Corona, exactly. COVID-19. And now आप लोगों ने देखा जब न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं न्यूज सुनाने,
What do they do? What do these reporters do? Very good. So अब जब ये न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं तो ये क्या करते हैं? सीधा थोड़ी ना बताने लग जाते हैं कोरोना वायरस आ गया. नो, दे मेक वेरी गुड स्टोरीज, बातों को घुमाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं. यस. और तभी हमें सुनने में कितना मजा आता है. सबके घर में डेली 1 आवर न्यूज चलती होगी. आई कैन से दैट. यस. यस. और जब वो स्टोरीज सुनाते हैं न्यूज में तो वो बहुत सारे विजुअल्स का यूज करते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स का यूज करते हैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए. यस. दे यूज अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. दे मेक गुड स्टोरीज ताकि लोग बहुत एक्साइटेड हों, बहुत इंटरेस्टिंगली उसको सुने. यस. न्यूज चाहे बहुत बुरी हो बट वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं. कैसे? लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करके. यस. एम आई राइट? सो न्यूज में तो सबसे ज्यादा स्टोरीज आती हैं. कोरोना वायरस को कैसे कितने सारी जगह से लिंक कर दिया, कैसे वो चाइना से रिलेट करते हैं, फिर वो कैसे बोलते हैं कि कोरोना वायरस तो होना ही था. इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे किसी किसी पंडित ने बताया था, प्रीस्ट ने बताया था कि ऐसा होगा. यस. तो वो उस बात को बताने के लिए क्या करते हैं? दे यूज स्टोरी टेलिंग. दे यूज स्टोरी टेलिंग. व्हाट डू दे यूज? दे यूज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. Am I right? Just like yesterday, when I was explaining you the topic, I used the art of storytelling. मैंने क्या यूज किया? मैंने स्टोरी टेलिंग का यूज किया अपनी बात को बताने के लिए. तो आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो गए थे? जेरी की प्रॉब्लम, टॉम की प्रॉब्लम. ये टॉम है कौन यार? पता तो चले. Yes, we all were very excited to know about Tom and Jerry. Yes, right? So similarly, storytelling is a very very effective and efficient art of saying something. अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को सुने. yes, if you are, आप लोगों के स्कूल्स में स्पीच कंपटीशन, राइम कंपटीशन, डेक्लेमेशन, एक्सटेम्पोर होते हैं ना, ये सारे कॉम्पिटिशन्स. कोशिश करो कि इसमें आप स्टोरी टेलिंग लाओ. जब आप चीजों को अपने से रिलेट करते हो ना, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है. यस. और जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम स्टोरी को बहुत एंजॉय करते हैं. कौन कौन मुझे बताएगा कि जब आप स्टोरी सुनाते हो या आप जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हो स्टोरी सुनाने के फॉर्म में, तो क्या आप उस चीज को एंजॉय करते हो? डू यू एंजॉय दैट? डू यू एंजॉय दैट? Whenever you use storytelling as an art, do you enjoy? Yes. ऑटोमेटिकली जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो हम इंजॉय करते हैं. हम इंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे इमोशंस के साथ उसे बताते हैं. स्टोरी बताते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मूवीज में क्या होती है? मूवीज में एक्टर्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं. यस. और हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो. क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से इमोशनली उसको रोल को प्रेजेंट करते हैं. राइट. सिमिलरली येस्टरडे जब मैं आपको स्टोरी सुना रही थी तो मैं बहुत ज्यादा इमोशंस को यूज करके बता रही थी कि टॉम आया, टॉम बहुत परेशान था तो उसने मुझे बोला. यस. एंड दैट्स हाउ आप मेरे इमोशंस की वजह से उसे और ज्यादा इंजॉय कर रहे थे. एंड यू वांटेड टू नो कि ये टॉम है कौन. यस. यस. So now when I talk about storytelling, when I talk about storytelling, can you see the 3 pictures on the board? Can you see 3 pictures? 1 picture, 2 picture, and 3rd picture. Can you see these 3 pictures? All right. What do you think? First picture हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? Anything special? Is the first picture trying to say something interesting? Yes. Can you tell me? What
you see in the first 3 pictures? Friendship between animals and humans. Okay. Very good. You people are very creative, I must say that. Friendship between humans, man talking to a lion. Very good. And in second picture, what you can see? Very good. Look, what are you doing? आप सारे बहुत creatively मुझे अपने ideas दे रहे हो. Yes? You all are giving me some creative ideas. This is called innovation. This is called creativity. Okay. What can you see in the second picture? Can you see something in the second picture? Words. Very good. And words are like yeah, yo, wow, happy, simple, goals, let's do it, busy. Yes, expressions in the second picture. Very good. Khushwin, very, very right. बहुत अच्छे से बताया Khushwin. Words, expressions. Picture shows a boy with his best friend. Very good. And what can you see in the third picture? Okay. थर्ड पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं हम लोग? Can we see something in third? Interjections. Very good, Lakshmi. Very, very good. Ma'am, the excited words. Okay. Interjections, expressions, words. Very right. All right. So everybody said in third we can see noise. We can see noise pollution. Very right. Sounds. Interesting. Microphone. Very good. So I think you should give a big round of applause to yourselves. All right. And now let's see what is storytelling. Storytelling hoti kya hai? All right. So storytelling क्या है? देखो, आराम से देखो. अभी आपने 3 वर्ड्स मुझे बताए. फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या आपने मुझे बताया कि यहाँ पे बॉय है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज अ पिक्चर एंड दिस इज कॉल्ड अ विजुअल. दिस इज कॉल्ड अ विजुअल, राइट? So now when I talk about storytelling is the sharing of stories and events. हमें जब भी कोई बात बतानी हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, मे बी हमें हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो, कुछ बहुत अच्छा हुआ हो, राइट? सो व्हाट डू वी डू? वी शेयर स्टोरीज एंड इवेंट्स. एंड व्हाट डू वी डू? स्टोरी बताते टाइम हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड वर्ड्स. ऑफ कोर्स जब हम कोई चीज बोलेंगे तो हमें वर्ड्स चाहिए होंगे. इन ऑर्डर टू से समथिंग वी नीड वर्ड्स. सो स्टोरी टेलिंग needs words. It needs some sounds. अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पीछे डीजे आरजे होगा जो साउंड्स बजाएगा. नो. हाउ आर वी गोइंग टू यूज साउंड्स? हमें हमारी साउंड्स को आर्टिकुलेट करना होगा. आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है अप एंड डाउन. इमोशंस को फील करना होगा. जब कोई अच्छी बात नहीं होगी तो हमारी साउंड डल हो जाएगी. हम इमोशंस को फील करेंगे. एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज दी साउंड्स विच वी हैव. आरजे नहीं आएगा, डीजे नहीं आएगा साउंड्स बजाने पीछे. यस. सो वी हैव टू नो दैट वी आर यूजिंग वर्ड्स. सो वर्ड्स के साथ हमारे को राइट अमाउंट ऑफ इमोशंस का भी यूज करना है. यस. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट विजुअल इमेजेस, अब हमेशा तो आप स्टोरी सुनाते टाइम विजुअल इमेज नहीं लोगे. फॉर एग्जाम्पल मम्मा को कोई स्टोरी सुनानी है तो आप विजुअल फ्लैश कार्ड लेके तो स्टोरी नहीं सुनाओगे. मुझे मम्मा को कुछ अच्छी सी बात बतानी है. सपोज मैंने प्लांट्स को ज्यादा पानी दे दिया. ऑलराइट, अब मुझे स्टोरी बनानी पड़ेगी ताकि मम्मा डांटे ना. राइट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम लोग एक सीन सेट करेंगे. एक मम्मा के लिए एक ऐसा पिक्चर बनाएंगे जो सच में नहीं दिख रही, सिर्फ मम्मा को दिखेगी इमेजिनरी फॉर्म में. यस. और मम्मा उस पिक्चर को देख के इंटरप्रेट करेगी और डिसाइड करेंगी कि उनको हमें डांटना है, उनको हमें मारना है, या उन्होंने हमें इट्स ओके बोल देना है. Am I right? Am I right, people? Yes. और अगर आपको लगता है कि आपके पास स्टेज है, आप उसके साथ फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है.
बट रियल लाइफ में जब हम स्टोरीज को सुनाते हैं, जैसे कल मैम आपको स्टोरी बता रही थी, तो व्हाट आई वाज डूइंग, मैंने एक सीन क्रिएट कर दिया आपके सामने और मैंने क्या बोला, that there is a boy named Tom and he's from your school and he has some problem in his grammar. Remember? So you have to use right words, you have to use emotions, you have to use emotions which will help you give the right message. जब आप सही से emotions का use करोगे अपनी story बताते वक्त, तो message भी क्या होगा, that's going to be conveyed in the right manner. It's going to be conveyed in the right manner. And with that, अगर आप कुछ scene set कर दोगे, yes, और story बताते हैं तो visuals तो already set हो जाते हैं, yes, और visuals को set करने के लिए हम सबसे ज्यादा importantly क्या use करेंगे, सही words, right words, yes, yes, yes. All right students, so जब हम कल स्टोरीज बना के देंगे, जब हम स्टोरी टेलिंग को रिकॉर्ड करके रावल इंटरनेशनल मंच पे डालेंगे, रावल डिजिटल मंच पे रिकॉर्ड करके हम जब उसको डालेंगे, तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है कि हम जो भी स्टोरी बताएंगे, जो भी कोई एक्सक्यूज को बताएंगे, उसको हम इमोशनली फील करके बताएंगे, यस, हम एक अच्छा सा सीन सेट करेंगे ताकि हमारे को जो सुने, हमारी स्टोरी को जो सुने, उसको लगे वो सीन में आ गया। हमें एक विजुअली एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, यस। अब आप सोचो, मैंने आपको बोला कि ये बॉय और ये लायन है, अब आप इसको कैसे दिखाओगे, अब आप चाहते हो कि मैं इस पिक्चर को इमेजिन करूं, मेरे पास पिक्चर नहीं है पर मैं इस पिक्चर को इमेजिन करूं, आपको मुझे ये पिक्चर इमेजिन करवानी है, तो आप कैसे कराओगे, यूजिंग द वर्ड्स एंड यूजिंग द साउंड्स, यू विल मेक मी फील द विजुअल, एम आई राइट, yes, good to go. Everybody good to go? Can I have thumbs up? I'll tell you, that's a mystery books homework. So homework के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, पहले हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे, okay. Now you all are going to get what? You all are going to get a homework. You all are going to enjoy your Saturday evening. और आप सारे के सारे Saturday evening पे क्या करोगे? You all are going to record a very, very interesting story. You're going to record a very interesting story. तो स्टोरी को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई बातें ध्यान रखनी है, ताकि रावल डिजिटल मंच पे जब आपकी वीडियो रावल इंटरनेशनल मंच पे आए तो उसको ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, यस, एम आई राइट, यू ऑल वांट, आप सभी ये चाहते हैं, आई विल टेल यू द टॉपिक फॉर द स्टोरी, आप सब ये लोग ये चाहते हैं कि आपका जो भी आप स्टोरी बनाओगे that should win the first prize, yes, so there are some points that you need to remember. आपको कुछ पॉइंट्स मैं दे रही हूँ, कुछ टिप्स दे रही हूँ, जिससे आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी और आप ही को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा, alright, so all of you want that you get first prize for your story, so for that you need to use some tips that I am going to give you now. अगर आप सब कॉपी और पेंसिल यूज कर रहे हैं तो आप इसका नोट बना सकते हैं, यस। जब भी आप स्टोरी सुनाना शुरू करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वॉइस ऊपर नीचे होनी चाहिए, अप एंड डाउन, मतलब कई जगह पे थोड़ी सी लाउड, कहीं पे थोड़ी सी कम, अप एंड डाउन। और वो कैसे होगी, जब आप इमोशंस को फील करोगे, राइट। वॉइस अप एंड डाउन होती है, जब हम बात करते हैं तो वॉइस अप एंड डाउन होती है ना, हम कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस करते हैं, कुछ पे स्ट्रेस नहीं करते, तभी ये वॉइस क्या होती है, अप एंड डाउन होती है, ऑलराइट। फिर हम लोगों ने क्या यूज करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस,
वर्ड्स तो हमारे बताएंगे ही बताएंगे, बट वर्ड्स के साथ साथ जेस्चर्स, बॉडी और फेस एक्सप्रेशंस आने चाहिए. इफ समथिंग इज नॉट गुड, then you should have a little sad face, something which is very exciting, happy face, a big smile. Yes, your body should also speak. When you will be speaking, your body should also speak. और आपकी बॉडी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके वर्ड्स स्टोरी के साथ मैच करने चाहिए. यस, ऐसा ना हो कि आप बात किसी सैड चीज की कर रहे हो और आप उस टाइम स्माइल कर रहे हो. यस, सो यू हैव टू मेक अ connection. You have to make a connection. Then you have to have a clear focus. You have to be very focused and maintain concentration. कहीं से किसी भी चीज को देख के डरना नहीं है. आपको लग रहा है कि कैमरा में कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तो उस चीज से आपको डरना नहीं है. आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है और आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, दैट आई हैव टू विन द फर्स्ट प्राइज. योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी दैट आई हैव टू डू द बेस्ट एंड आई हैव टू विन द फर्स्ट प्राइज. You have to have eye contact. You have to have eye contact. अभी आपकी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी तो आपको आई कॉन्टैक्ट रखना है. जब आप कोई स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में मम्मा से बात कर रहे होगे तो यू शुड हैव आई कॉन्टैक्ट विद योर मम्मा. जब आप स्टेज पे स्पीच दे रहे हो और आप स्टोरी टेलिंग का यूज कर रहे हो तो यू शुड हैव आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस, विद योर फ्रेंड्स, विद योर टीचर्स जो आपको सुन रहे हैं. हर कोई चाहता है ना हमारी बहुत कैरिज्मेटिक का मतलब होता है बहुत अच्छा, करिश्मा, पावर, ब्यूटी. सब लोग चाहते हैं ना कि जब आप स्टोरी सुनाओ तो हम सिर्फ आप ही की स्टोरी सुने और इतने ज्यादा उसमें डीप डाउन उसमें इतने मगन हो जाएं कि हम बोले यार दिस इज द बेस्ट स्टोरी. और एज ऑडियंस, एज जजेस, हम लोग आपकी सबकी स्टोरीज देख के कंफ्यूज हो जाएं कि हमें फर्स्ट प्राइज किसको देना है. और ऐसा भी हो सकता है कि हम बोलें कि सबने बहुत अच्छा किया, एवरीबडी इज अ विनर. यस, सो उसके लिए आपको अपने ऑडियंस को, आप जब स्टोरी सुना रहे होगे तो आपको अपने ऑडियंस को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है. बहुत सारी साउंड्स का यूज करो, अप एंड डाउन. यस, सपोज आपको लगता है कि आप अपनी स्टोरी बता रहे हो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, राइट? तो थोड़ा बहुत आप साउंड्स के साथ प्ले कर सकते हो. यू कैन प्ले विद योर साउंड्स. कई स्टूडेंट्स को साउंड्स भी बनाना आती होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैट का म्याऊ, एंड मे बी कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं साउंड्स बनाने में, तो आप उसका यूज कर सकते हो अगर आपके पास वो टैलेंट है. ऑलराइट, अगर आपको थोड़ा सा वॉक करना है, इधर उधर आगे पीछे होना है, जस्ट टू शो कि आप स्टोरी सुनाते टाइम मूवमेंट क्रिएट करो, आप खड़ा नहीं हो ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है. यू कैन मूव. ऐसा नहीं कि बहुत सारा वॉक करने लग जाओ, नो. सिर्फ थोड़ा सा स्पेस में, एक रेक्टेंगुलर स्पेस में आप थोड़ा मूव कर सकते हो ताकि उससे बहुत अच्छा लगे, उससे लगे कि आप भी स्टोरी एंजॉय कर रहे हो. क्योंकि जब भी हम स्टोरीज बनाते हैं तो स्टोरीज हैव मूवमेंट. स्टोरीज के अंदर मूवमेंट होती है. स्टोरीज कभी भी स्टिल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती. स्टोरी पूरे के पूरे जितनी लंबी स्टोरी है वो स्टोरी एक जैसी नहीं होती. उसमें अप एंड डाउन होता है, मूवमेंट होती है. स्टोरीज के अंदर कैरेक्टर्स की मूवमेंट होती है, चीजों की मूवमेंट होती है. सिमिलरली उस मूवमेंट को दिखाने के लिए आप थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हो, बट इतना जो आप रिकॉर्ड हो सको कैमरे में. ऑलराइट, एंड देन बहुत जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना. खत्म करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए. यू कैन एक्ट वेरी गुड पूनम, यू कैन एक्ट. यू हैव टू पेस योर सेल्फ. मतलब आपने अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है. आप जिस भी स्पीड में बात करोगे आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है. ऐसी नहीं कि बस इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया इसलिए कि भाई मुझसे वीडियो मांगी थी और मैंने बना के दे दी. नो, यू हैव टू रिकॉर्ड योर सेल्फ. तो आप उस चीज को समझना कि मैं बहुत तेज भी ना बोलूं कि मेरे ऑडियंस को बात ही ना समझ आए. यस, अब है ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब क्या है ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको ध्यान रखने हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर जिनके बेसिस पे आपकी स्टोरी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आएगी. यस, यू वांट टू हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट सारे यही चाहते हैं कि हमारी स्टोरी फर्स्ट पे आए. ऑलराइट, यस. So then there are some points which I'm giving you. And that is, whenever
whenever you'll be making a, whenever you'll be telling a story, you have to remember that you have to set the scene. Remember? अब आप विजुअल्स, अगर आपको लगता है कि आप बहुत सुंदर सी ड्राइंग बना के उसको यूज कर सकते हो एज अ फ्लैश कार्ड, गुड, वेरी गुड, दैट्स एक्सलेंट. बट इफ यू थिंक यू डोंट हैव, you cannot draw good, then you have to set the scene. Yes, आपको सीन बताना पड़ेगा whenever. So जब मम्मा को कोई एक्सक्यूज देना होता है तो आप एक सीन सेट करते हो ना, नहीं मम्मा हम 4 लोग गए थे बट अचानक से वो वहां से चला गया, राइट? तो हम एक सीन सेट करते हैं ताकि मम्मा उसको इमेजिन कर पाए और एक्शन ले पाए. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. जैसे कि मैं देख सकती हूँ आप सारे बहुत ज्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव हैं, तो बहुत क्रिएटिवली आपने अपनी स्टोरी बनानी है ताकि लिसनर उसे इंजॉय करे. Yes, so that we all enjoy and we give you the first position. Yes, पंच लाइन पता होनी चाहिए. अब पंच लाइन हमेशा ऐसी नहीं होगी. पंच लाइन आपको ये पता चाहिए कि आपको मम्मा को जाके यही बोलना है कि मैंने गलती नहीं करी थी. और आप अपनी स्टोरी जैसे भी बनाओ बट आपकी पंच लाइन एक ही रहेगी कि मम्मा मैंने गलत नहीं किया था, गलती उसकी थी. यस, तो हर स्टोरी टेलिंग में एक पंच लाइन होती है. पंच लाइन मतलब जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो. The topic for the story will be disclosed after this slide. Yes, you have to tell the story in the English. The topic I'll be conveying in next 2 minutes. मैं आपको topic 2 मिनट बाद बताऊंगी once I complete this slide. और आपको पता होना चाहिए कि आप किस ऑडियंस में बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को कोई स्टोरी बता रहे हो तो वहां पे आप अलग तरीके से बताओगे. यस, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है. आप और इमोशंस का यूज करोगे और अच्छे अच्छे तरीके बताओगे. बट मम्मा है तो आपको पता है कि मुझे जो भी बताना है बहुत रिस्पेक्टफुली बताना है. यस, हमें अपनी बात मनवानी है बट बहुत रिस्पेक्टफुली मनवानी है. भाई बहन को कोई स्टोरी सुनाएंगे तो इसलिए हमें हमारी ऑडियंस पता होनी चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगेगा, उनको किस तरीके से, कितना रिस्पेक्टफुली मुझे उनको क्या चीज बतानी है. यस, इमोशंस, यू हैव टू फील द इमोशंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सीन. जब आप अपनी स्टोरी के बारे में बात करोगे, यू हैव टू टॉक अबाउट योर इमोशंस. यस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू एंजॉय. जब आप स्टोरी सुनाओगे तो आपको इंजॉय करनी है. यस स्वाति, यू कैन यूज द प्रॉप. ऑल राइट, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम टॉपिक क्या है. सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कोई भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी का. यू कैन टेक एनी टॉपिक. और आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपने स्टोरी बनानी है. बट ऐसे नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल. नो, आपने स्टोरी क्या बतानी है, आपने स्टोरी का यूज करते हुए कोई बात, कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन देनी है. जस्ट लाइक न्यूज में जैसे आती है, न्यूज में कोरोना वायरस को बताने के लिए दे यूज अ लॉट ऑफ स्टोरीज ना. 20 साल पहले भी ऐसी एक बीमारी आई थी और फिर वो कोरोना को लेकर आते हैं, राइट? तो आज जो हमने पढ़ा हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग. हम स्टोरी टेलिंग का यूज कैसे करेंगे जब हम कोई बात बताएंगे. यू कैन यूज एनी टॉपिक. यस, संडे को भी क्लास होगी 11:30. ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं रावल डिजिटल मंच पे पेज पे डलवाऊंगी. आप ये सारे वर्ड्स को देख सकते हैं. ये कुछ वर्ड्स हैं जो इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो आपको ये जो वर्ड है, ये जो वोकैबुलरी टेबल है, ये मैं रावल डिजिटल मंच पे डलवाऊंगी, जिससे आपको हेल्प आउट होगा वर्ड्स को याद करने में और ढूंढने में और उनको यूज करने में. ठीक है? And now it's time for all of you to be very excited to make your own story. Are we excited? And you have to use what? You have to use emotions, just like these smileys. Can you see my smileys? Yes, my sponge balls. So you have to use all these smileys when you will be making and telling your story. Yes. ओके, वीडियोस कहाँ पोस्ट करनी है? वेरी गुड क्वेश्चन. जिस व्हाट्सएप नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी, आपने उसी व्हाट्सएप पे अपनी वीडियोस बना के पोस्ट करनी है कल मॉर्निंग से पहले. कल क्लास से पहले आपने उन सारी वीडियोस को पोस्ट करना है ताकि हम लोग
रावल डिजिटल मंच पे आप सबकी रिकॉर्डिंग्स डाल सकें और सब लोग आपको सुन पाए. Are we excited? हम चाहते हैं कि सब हमें सुने, right? So similarly, you all are very thrilled and so do I. All right. So I want everyone to share their stories before 11:30 tomorrow so that we can post your stories and we can put it on Ravel Digital Munch. All right? Good. Was the class good today? Interacting? Interesting? I love you too. The topic for the story is any topic. आप किसी भी topic पे story बना सकते हो. Horror, comedy, fiction, non-fiction, जैसी आपको पसंद हो. बट एक चीज याद रखनी है कि आपने स्टोरी टेलिंग को यूज करते हुए अपनी कोई बात को बताना है. ऑल राइट. यस, फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा सिचुएशन ले सकते हो जहां पे आपकी मैम आपको डांट रही है और आप उनको स्टोरी बना के दे रहे हो. यस. ऑल राइट. थैंक यू जसबीर सिंह. आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, पता है आपको. थैंक यू पूनम. एनी टाइप ऑफ स्टोरीज, किसी भी टाइप की स्टोरीज बना सकते हो, जिस भी टाइप ऑफ स्टोरीज में आपको इंटरेस्ट हो. भाई से लड़ते हुए, मम्मा से लड़ते हुए, एनिमल से लड़ते हुए, कुछ भी. थैंक यू. आई लव यू ऑल. All right, so with this, we will end the class. Thank you so much for watching, and I want to see exciting stories. Yes? बहुत exciting stories देखने को मिलेंगी मुझे. Thank you everyone. You all are also very good. So a lot of hearts, virtual chocolates from my end. Thank you. All right, I'll wait for lovely stories, horrible, comedy, exciting, thrilling stories. ठीक है?